Good morning, students. This is Lal Chandra Yadav, your SST teacher. Welcome to all in your class. I hope all of you are fit and fine at your place. Dear students, as you know, we are reading the first chapter of political science, power sharing. And in the previous video of this chapter, we had discussed about the majorityism in Sri Lanka. We had noticed that how the Sri Lankan government had tried to given the favor to the majority group Sinhalaj, and due to this step of the Sri Lankan governments, the Tamil became very angry, and they had struggled against this step of the government. They had conflicts with the Sinhalaj, and finally it had changed into the civil war. So due to this decision of the Sri Lankan government, when they tried to give the power, when they tried to did not share the power among the majority and the minority groups, it had converted into the civil war, and the people had to face a lot of problems. Now today we will be discuss about the response and the steps of the Belgium governments which were taken to accommodate their diversities. As you know, in the Belgium there was also a diversity on the basis of the language. There were the two major speaking peoples, and they were the French and the Dutch. Now we will see which steps taken by the Belgium governments to accommodate their diversities. As you can see, today's topic is accommodation in Belgium. So it is clear that we are going to discuss about the steps of the Belgium government to accommodate their diversities. Dear students, the Belgium government have took the different path than the Sri Lanka to accommodate their diversities. They had recognized their diversity, they had recognized the importance of their diversities, and they finally decided to share the power among the French as well as the Tamils. उन्होंने दोनों में पावर को शेयर करना समझदारी समझा, because they recognize that if they will not be share the power, the unity of the country will be interrupted. जो unity है country की वो टूट जाएगी और देश बिखर जाएगा, देश डिवाइड हो जाएगा. So to given the power to the French and the Dutch, they had discussed for a long time, and they have amended their constitutions 4 times. और उन्होंने अपने संविधान में 4 बार परिवर्तन किए, so that they can drop a constitutions which are beneficial for all the social groups, for all the ethnic groups, जो सारे ethnic groups के लिए अच्छा हो. And finally they got the success, and Belgium has emerged as a democratic countries, which is the ideal for all the countries. And finally the Brussels, which is the capital of the Belgium, had chosen as the headquarters of the European Union. So dear students, let us see which steps were taken by the Belgium governments to accommodate their diversities. The first steps which was taken by the Belgium government to accommodate their diversities was that they had given the provision in the constitution that the number of the ministers from both the communities, means from the French and the Dutch, should be equal in the central government, so that no single government can take decisions unilaterally, यानी अकेले कोई भी डिसीजन ना ले सके. So dear students, we can write the constitution
of Belgium prescribes that the number of French and Dutch speaking ministers in central government should be equal, so no single community can take decision unilaterally. So dear students, as you can see, the Constitution of Belgium prescribes that the numbers of the French and Dutch speaking ministers in central government should be equal. अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविज़न रख दिया गया, यह प्रावधान रख दिया गया, यह कानून बना दिया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो केंद्र सरकार होगी, उसमें फ्रेंच स्पीकिंग पीपल से और डच स्पीकिंग पीपल से जो मिनिस्टर चुने जाएंगे उनकी संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। और इस किस लिए किया गया, जिससे कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन एक तरफा ना ले सके, अर्थात मनमाना ना ले सके। देयर इज ए क्वेश्चंस विच कैन कम इन टू योर माइंड्स, एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है। एज यू नो द डच वेयर इन मेजॉरिटी इन टू द इंटायर कंट्री, डच पूरे देश में क्या थे, मेजॉरिटी में थे। सो दे कैन बी क्लेम्ड, वो क्लेम कर सकते थे, दे कुड बी क्लेम दैट द नंबर ऑफ द मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड मोर देन द फ्रेंच, बट they had accepted to this provision of the constitutions because the French had also accepted this distribution into the capital city of the Belgium, Brussels। अभी आप आगे देखेंगे कि ब्रुसेल्स में भी कुछ इसी प्रकार का प्रोविज़न बनाया गया। तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी में थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस किया। तो डच पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे, कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया ताकि वो लोग क्या कर सके, पीसफुली तरीके से देश में रह सके। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न, हमने सीखा कि इन अ कंट्री वेयर इज ए डाइवर्सिटीज लाइक इंडिया, कि भारत जैसे देश में जहाँ डाइवर्सिटीज है, द एवरी पीपल्स शुड सेक्रीफाइस सम and they will try to cooperate to each others so that the unity of the country can be maintained and we can live peacefully, ताकि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी एकता को बना करके रह सकें। Now we will discuss about the second amendment of the Constitution of the Belgium, second steps of the Belgium government to accommodate the diversities, the powers were given to state government को भी ज़्यादा पावर दी गई एंड they were not the subordinate
सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेशल पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई ताकि वो अपनी रीजनल डाइवर्सिटीज़ को अच्छे से एकोमोडेट कर सकें, वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। सो डियर स्टूडेंट, यू कैन बी सी द पावर्स वेयर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। पावर जो है कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दी गई एंड द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट डिपेंडेंट to take the decision on the central government, means the state government has the powers on their regional matters, on their regional issues. They had not to wait to the decisions of the central government, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, वो खुद अपने डिसीजंस ले सकते थे स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि इंडिया में भी ये प्रोविज़न है, ये नियम बन गया है कि कुछ जो विषय हैं, जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उस पर स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पावर है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो रीजनल डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करने का एक अच्छा तरीका है कि हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल्स में बांट देते हैं। अभी अगला चैप्टर आपका फेडरलिज्म है, उसमें आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिफरेंट लेवल में बांट करके ताकि हम क्या करते हैं कि गवर्न कर सकें इफेक्टिवली देश को, और हम रीजनल डाइवर्सिटीज़ को क्या कर सकें, एकोमोडेट कर सकें, रीजनल डाइवर्सिटीज़ को आसानी से रिजॉल्व कर सकें, सॉल्व कर सकें जो उस पर समस्याएँ आती हैं। द थर्ड स्टेप्स विच वाज टेकन बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट दैट देयर विल बी सेपरेट गवर्नमेंट in Brussels and the representation of Dutch and French will be equal। सेम वही प्रोविज़न यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया गया जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में था कि देयर विल बी अ सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डच एंड द फ्रेंच। जो डच और फ्रेंच का रिप्रेजेंटेशन था कहाँ पे, कैपिटल सिटी में, वहाँ पर भी इक्वल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव अर्लियर डिस्कस्ड यू, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि दैट डच पीपल्स हैव एक्सेप्टेड टू द इक्वल रिप्रेजेंटेशंस इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज द फ्रेंच हैज एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इनटू द कैपिटल सिटी although they were in majority at the different places। जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल सिटी में फ्रेंच मेजॉरिटी में थे जबकि पूरे देश में डच मेजॉरिटी में थे, लेकिन दोनों ने ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन को क्या किया, स्वीकार किया। तो कहीं पर कुछ लोगों ने अपने कुछ अधिकारों को इंटायर कंट्री में छोड़ा, यानी डच ने इंटायर कंट्री में अपने कुछ राइट्स को छोड़ा, सेक्रीफाइस किया, तो फ्रेंच ने क्या किया, कैपिटल सिटी में किया। मीन्स दे ट्राई टू लिव टुगेदर पीसफुल्ली, वो एक साथ रहने का प्रयास किए, एकोमोडेट करने का प्रयास किए। बिकॉज दे न्यू वेल, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि इफ़ दे विल नॉट बी शेयर द पावर, अगर वो पावर को शेयर नहीं करेंगे देन इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर देम, तो ये उसके लिए बहुत ही क्या होगा, हानिकारक होगा। द फोर्थ, अब हम आप फोर्थ की चर्चा करें तो फोर्थ में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी बेल्जियम में, क्या करने के लिए, कम्युनिटी रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए। कम्युनिटी गवर्नमेंट had been formed to take the
decision regarding cultural, educational, and language issues. So dear students, these are the 4 major steps which were taken by the Belgium government to accommodate their diversities. उन्होंने क्या किया? चौथा स्टेप जो आप देख रहे हैं, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया, जो कि किसके बारे में डिसीजन लेने का पावर था? which the community government has the power to take the decisions regarding the cultural, educational and the language issues. So they have very wisdomly recognized their diversities and shared the power so that the diversities in the Belgium could be accommodate, ताकि कि उसको क्या किया जा सके? accommodate किया जा सके. And they have accommodated their diversities very well. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से accommodate किया अपनी diversities को. And finally the Brussels had chosen the headquarter of the European Union. This is a very important questions which may be asked into the board exam. आपसे पूछा जाएगा कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? Then your answer will be Brussels. So after reading the case study of the Sri Lanka and the Belgium government, we had finally find out the answers why do we need the power sharing. हमने ये आंसर पा लिया कि हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है. Dear student, separately this questions may be asked in board examination. This is a very important question, that why do we need the power sharing, or into the another way the questions can be framed that why the power sharing is desirable. So dear students, we can be write the answers after reading the case history of the Belgium and the Sri Lanka, but on a short we are going to see it how we will write the answer of this question, कि हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे. So dear students, now finally we will discuss why power sharing is desirable, or these questions may be asked in another way, and that why do we need power sharing, कि आखिर हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है. As I earlier told you that after reading the case of Belgium and the Sri Lanka, you can very easily write the answer of these questions, but I am going to tell you how you will write the answers of these questions in board exam. कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे. So dear students, we can be write to the answer of these questions in two aspects. दो तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी दो मेजर हेडिंग्स बना करके हम लिख सकते हैं. एक तो हमारा है प्रूडेंशियल रीजन, and second is moral reasons. We can write the answers of the question why power sharing is desirable, or why do we need power sharing, by the help of the two headings, prudential reasons and the moral reasons. Prudential means समझदारी भरा डिसीजन. हम कह सकते हैं कि एक समझदारी भरा डिसीजन, तर्कसंगत डिसीजन और लॉजिकल डिसीजंस, एक बहुत ही सोचा समझा डिसीजंस. क्यों सोचा समझा है तो आप बाकी पूरा कर दीजिएगा, हम शार्ट में लिख दे रहे हैं. यानी आप सेंटेंस की जो शुरुआत करेंगे वो लिखेंगे. यू हैव टू स्टार्ट योर सेंटेंस दैट वी नीड द पावर शेयरिंग्स बिकॉज इट रिड्यूस द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. यानी क्या करती है? इट रिड्यूस द चांस ऑफ
conflicts. So dear students, as you know that the power sharing reduce the conflicts between the two social groups, two communities, two language group. जैसा कि आपने देखा कि जो पावर शेयरिंग है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करती है, रोकती है, इसमें चांस है रोकने का, तो इसलिए हमको पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये क्या करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। व्हाई डू वी नीड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, टू टेकिंग द एनी डिसीजंस, टू कंप्लीट द एनी प्रोजेक्ट्स, वी नीड द टाइम, वी नीड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज. If the government will not be stable, then how they can be accomplished to the any project, any plan for the development of the countries as well as the peoples. अगर गवर्नमेंट जो है स्टेबल नहीं होगी, यानी स्थिर नहीं होगी, कुछ दिन रह नहीं पाएगी, तो फिर कैसे वो देश की तरक्की के लिए, हमारी तरक्की के लिए कोई डिसीजन लेगी? एंड द गवर्नमेंट विल बी स्टेबल व्हेन द पीपल्स विल बी सेटिस्फाई इन टायर द कंट्री. और तभी गवर्नमेंट जो है स्टेबल होगी जब लोग क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे. एंड द पीपल विल सेटिस्फाई व्हेन दे विल बी रियलाइज दैट दे हैव द सम पावर, दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग इन द कंट्री. और वो तब संतुष्ट होंगे, तब गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे, तब गवर्नमेंट की बात मानेंगे, जब उन्हें लगेगा कि गवर्नमेंट उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है. तो इस प्रकार से जो पावर शेयरिंग है वो क्या प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट हेल्प्स टू टेक द राइट और वी मे से इफेक्टिव डिसीजंस. ये जो है ये क्या करती है, राइट और इफ़ेक्टिव डिसीजन लेने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है. बिकॉज वी हैव शेयर द पावर एमंग द डिफरेंट political parties, different social groups. So when we will take the decisions regarding the any social issues or economic development or on any other subjects, then all the peoples will give the consent and the approvals. So the decisions can be taken more effectively. The decisions may be right, सही decision हो सकता है in the comparison of the taking the decision alone. अगर कोई व्यक्ति अकेले किसी विषय पर निर्णय ले और कोई कुछ लोगों से राय लेकर के ले, तो जो राय लेकर के डिसीजन लिया जाएगा, जो सोच समझ करके लिया जाएगा, वो डिसीजन कैसा होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा हितकर होगा लोगों के लिए. तो इस प्रकार से देयर आर द सम प्रूडेंशियल रीजन्स फॉर द नीड ऑफ द पावर शेयरिंग, जिसके लिए हमें पावर क्या करने की ज़रूरत है, पावर को शेयर करने की ज़रूरत है. नाउ we will discuss about the moral reasons of the power sharing. यानी जो moral reason है, why do we need the power sharing, उसका जो moral reason हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रियों की ये स्पिरिट है कि वो पावर को क्या कर सकें, शेयर करें. सो इट इज़ द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी that they should share the power. एक तो मॉरल रीजन ये हो गया कि डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी रिकॉग्नाइजेशन है, मीन्स इट इज़ द स्पिरिट, इट इज़ द साउल ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज दैट दे मस्ट शेयर द पावर एमंग द peoples, among the different social group, among the different
डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, हम सब में पावर को शेयर करें। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री इसीलिए बनाई ही गई है कि वो पावर को क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए। यू कैन सी इन ए सच काइंड ऑफ द गवर्नमेंट वेयर देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे मोनार्ची है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, देयर इज द पावर इज सेंटर्ड ओनली इनटू द फ्यू हैंड्स। वहाँ पे पावर क्या है, कुछ ही लोगों के हाथों में है। बट डेमोक्रेसी टेल अस दैट, डेमोक्रेसी की डिफिनेशंस ही है कि द पावर विल बी शेयर्ड इन द पीपल्स एंड फाइनली द पीपल विल टेक द डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स। और लोग अपने बारे में क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। सो वी कैन राइट द सेकेंड रीजन दैट द पीपल should write, the people should write to take the decision, to take the decision about the matter that how they should गवर्न, कि उन्हें कैसे गवर्न किया जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग उनको खुद डिसीजन लेने का क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ताकि वो डिसीजन ले सकें कि आखिर उन्हें किस प्रकार से गवर्न किया जाना चाहिए, अर्थात किस प्रकार का लॉ, किस प्रकार का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशंस में होना चाहिए जो उनके लिए बेनिफिशियल्स हो। क्योंकि जो भी कानून बनाए जाएंगे उनके लिए बनाए जाएंगे, और जो कि उनके लिए भी हितकर हों और साथ ही साथ समाज के और लोगों के लिए भी हितकर हों, जिससे कि पूरा समाज एकता के रूप में एक पीसफुली तरीके से रह सके और एक सोशल हार्मनी इस्टेब्लिश की जा सके। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन बी सी दैट वी मस्ट नीड द पावर शेयरिंग। हमको निश्चित रूप से पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल द थिंग्स अबाउट द टॉपिक्स विच आई हैव डिस्कस्ड टुडे, विच आई हैव रीड टुडे, जो कि आज हमने पढ़ा है, आर क्लियर्स एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टू द एवरी concept of the chapters. So dear students, this is all for today. Thank you so much for watching the video.